اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مطلب ہے رسول ضرور اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. 18,000 مخلوقات میں سے اللہ پاک نے حضرت انسان کو چن کر اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام پر ڈالے، اس رہتی دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو یہ دنیا کے اندر بھیجا ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، محنت اصل محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج لوگ جو ہے کوئی کسی چیز کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، کوئی اپنے دکان میں کہیں کامیابی سمجھ رکھا ہے، کوئی اپنی بزنس کو کامیابی بنا رکھا ہے، کوئی کھیتی باڑی کو کامیابی بنا رکھا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو کامیابی سمجھ رکھا ہے. یہ ساری چیزیں میرے دوست بزرگوں یہ اسباب ہیں، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں. مقصد ہمارا میرے دوست بزرگوں وہ دین، وہ جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اس سطح کی کامیابی اللہ پاک سے آخرت میں عطا فرمائے. اس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا، میں اور آپ محنت کر کے اپنی زندگی میں جتنا دین داخل کریں گے اتنی بڑی کامیابی کل قیامت کے روز آخرت میں مجھے اور آپ کو ملے گی. فیصلہ میرا اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں دے رکھا ہے. ہم چاہے تو کہیں یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کو بنائیں، یا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کہیں صرف دنیا بنا کر چلے جائے، آخرت ہماری اجڑ جائے. یہ ہمارے اختیار میں ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے جس کی تشریح کی فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا بولو کس کی کھیتی ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. بلکہ دنیا میں میں اور آپ جتنی محنت کریں گے، جو کچھ بھی میرے دوست بزرگوں کہے نیکیاں، کوئی بھی نیکی کا کام، خیر کا کام، اللہ کی رضا والا کام کریں گے، یہ سارا میرے دوست بزرگوں آخرت کی کھیتی ہے. اس لیے وقت کسی اللہ والے ایک مرتبہ ایک مولانا اپنے بیان میں بتا رہے تھے، جب میں اور آپ کہے کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، تو آخرت میں کہے فرشتے ہمارے کے لیے کہے جنت سجا رہے ہوتے ہیں. اب کچھ فرشتے رک جائے، کسی نے کوئی پوچھ سے بھی آپ رک کیوں گئے؟ بولے کہ دنیا سے میڈینا لانا بند ہو گیا. کیا آنا بند ہو گیا؟ ایک اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو خواب دیکھ رہے کہ قبرستان کی سارے قبریں کھلی اور سارے لوگ نکل کر باہر آئے اور سب ان کے سامنے کوئی چیز آنے والا کوئی چیز پھینک کر جا رہا ہے ڈال کر، تو سب وہ چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. لیکن ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ تنہا اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھا نہیں رہا ہے. اب خواب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی یہ ساری چیزیں لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور آپ کہیں یہاں پر اکیلے بیٹھے آپ اٹھا نہیں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ وہ خبر کے اندر جو خبر سے وہ نکلے ہوئے تھے، اس انسان نے انہیں خواب دیکھنے والوں سے کہا، یہ جو لوگ جو ہے سب مرے ہوئے ہیں، ہم سب قبر سے اٹھ کر باہر اس لیے آئے ہیں کہ، اور یہ جو کہے زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے عام انسان سب کو کوئی نہ کوئی مرنے والوں کو بخش دیتا ہے. جیسے کہ کوئی دعا میں یوں کہی، اللہ تمام کے انسانوں کی مغفرت فرما، جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، اس کا ایک حصہ اللہ ان کو دے رہا ہے. اللہ جتنے لوگ قبرستان میں سوئے ہیں سب کے عذاب کو دور فرما، اس کا ایک حصہ ہر انسان کو مل رہا ہے. یہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو لوگ کہیں یہ لوگ جا کر سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. اب انہوں نے خواب دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جمع کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے جمع نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے الگ سے بھیجنے والی میری نیک اولاد ہے، الگ سے بھیجنے والی.
3 चीजें दुनिया में कहे इंसान की खैर की चीजें, फरमाए वो इल्म जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। दूसरी नेक औलाद। कौन सी औलाद हो? औलाद तो सबको है, पर कैसी हो? नेक औलाद हो। दुनिया का जमा को छोड़ कर चले गए, औलाद नेक नहीं है। मरते ही 4-5 मौलवी साहब, 10-12 मौलवी साहबों को बुलाकर 500 के बजाय 1000 देखो, कुरान खानी के नाम से एक क्या रस्म पैदा होगी, जिससे जमा कर लोगों को कुरान पढ़ा करके भेजने वालों को भेज डाले। हाँ भाई क्या हुआ, मसला खत्म, मैं अपने आप को, मेरे बाप का हक मैंने अदा कर दिया, मसला खत्म। कहाँ दफन किए हैं, कहाँ हैं? जुमा के दिन सुबह में मैं कब्रिस्तान में खड़ा था, फजर के बाद रोजाना जाने की आदत है, तो खड़ा होता तो एक साहब आपको तलाश कर रही है, कहाँ की थी ना भी हमारे, इनकी खबर रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार की खबर तलाश कर रहे हैं। लोग दफना कर ऐसे भूल जाएंगे जैसे वो आपको पहचानते ही नहीं। ये हम में से हर एक पर आने वाला याद रखो, अगर हमारी औलाद निकला। और दूसरा वो जो खैर आखिरत के लिए अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, अल्लाह के नाम पर लगा दिया, वो माल हमेशा के लिए बाकी। एक मरतबा हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाए, एक बकरी ज़ुबा किए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई क्या बाकी है, गोश्त तकसीम हो गया कि कुछ बाकी है? मायशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहने लगी, या रसूल अल्लाह, सब तकसीम हो गया सिवाय एक रान के, एक शान मुंडे के, एक शान बाकी है, बाकी सब तकसीम हो गया, सब बाकी है, खत्म हो गया, सिर्फ एक रान है, एक शान बाकी रह गई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, सब बाकी है, सिर्फ एक शान के अलावा। जो लगा दिए, जो खिला दिए वो बाकी, जो घर में है वो बाकी नहीं, वो पता नहीं क्या लगता है। तो समझ में आए, 1000 रुपये मेरे जेब में है, मैं 500 रुपये अल्लाह के दीन पर लगाया। किस पर लगाया? अल्लाह के दीन पर लगाया। अब 500 रुपये मेरे जेब में और बाकी है। अब बोलो कौन से बाकी है? सब जाहिर तौर पर नजर आता है कि जो जेब में है वो बाकी है ना। अगर तुम्हारे जेब में सामने देख दिन देखो 500 रुपये वो बाकी है, एक ना बनेंगे। लेकिन हकीकत में तो जो लगाया था अल्लाह के नाम पर वो बाकी है, जो है उसका पता नहीं कि कहाँ लगेंगे, जो है उसका कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ लगेंगे। लेकिन जो लग गया अल्लाह के नाम पर वो हमेशा के लिए लग गया, हमेशा के लिए बाकी है, हमेशा के बाकी है। और जो रह गया मेरे दोस्तों पता नहीं उसका कहाँ दोबारा लगेगा। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने क्या फरमाया? सारा जो तुमने लगाया वो बाकी है, सिवाय कहे इसके जो तुमने घर में रखा हुआ है। जो चीज बाकी है वो बाकी नहीं है, वो तो फना होने वाली है। जो अल्लाह के नाम पर लग गया मेरे दोस्तों वो हमेशा की बाकी है। इसके लिए मेरे दोस्तों को हमसे कहा गया कि हम दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए दुनिया में आए। किसकी तैयारी के लिए? आखिरत की तैयारी के लिए। अब मैं और आप सोच सकते हैं कि मेरी अपनी जात से मेरी आखिरत कितनी बन रही है। मेरी अपनी जात से जब आदमी आखिरत की तैयारी करने लगता है तो मौत से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा हो जाता है। अब जरा कभी क्या ज्यादातर मौत का तस्करा करो, लोगों को परेशानी होती है, क्या ये लोग हमेशा कहें मौत की तस्करत कर देना, अच्छे मूड में रहे तो मूड चेंज करवा देना, मौत की तस्करे करो। हालांकि हारून रशीद रहमतुल्लाह के बारे में गालिबन यूं आया तो वो लोगों को जमा करते थे और मैं इकराम को जमा करके मौत के तस्करे करके सुना करते थे और दार फतार रोया करते थे। हमारा सलाफ की ऐसी जिंदगी गुजरी। हज मौत को तो हमने डर खामोश हो, अभी लंबी जिंदगी है, अभी कई को मार बाप उसकी तस्करे कर दो। आदमी जब आखिरत की तैयारी के लिए तैयार होता है, आखिरत की तैयारी करता है तो उसे मौत से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है और अल्लाह से मुलाकात का शौक अंदर पैदा हो जाता है। इससे मुलाकात कर अल्लाह से। वरना मेरे दोस्तों मौत का नाम सुने तो परेशानी बढ़ जाती। हमारे मौलाना अकबर शीर साहब बता रहे थे, एक आदमी मदीने में दुआ कर रहा है, या अल्लाह यहाँ की मौत नसीब फरमा, मुझे मदीने की मौत नसीब फरमा।
اب ہوا یہ کہ شام ہوتے ہوتے اسے بخار آنا شروع ہو گیا. اب اس کے ساتھی جو تھے وہ دیکھے کہ آپ نے ایسا حدر رہا ہے. اب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کو دیکھے تو اور رہا بیچارہ ہوتی بخار آ گئی. اسے بولے بھائی ایسا معلوم ہے کہ تیری دعا قبول ہو رہی. انہیں بولے چپ ہو رہے اتنے دعا نہیں کرے اپنوں سے بھی یہ کی کیا قبول ہونا سو. حضرت بولے لوگ مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے لیکن وہاں مرنا بھی پسند نہیں کر رہے. صرف ہماری زبان ہی ہے. کیا ہے بولو؟ زبان سے اظہار کر رہے ہیں لیکن جب سامنے آ جائے تو سب کو ڈر لگتا ہے. سامنے آ جائے تو میرے دوستوں لوگ لیکن مرنا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نیکا لال نہیں ہے اس دنیا کے اندر یہ کہہ سکے کہ بھئی میں ہرگز مروں گا نہیں جب تک کہیں میں اپنی چاہت سے دنیا سے نہ چلے جاؤں. ایسا کوئی نیکا لال نہیں ہے. ہر ایک کو میرے دوستوں لوگ بادشاہ سے بادشاہ ہر ایک کو کہے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. لیکن کس حال میں جائیں گے مسئلہ یہ ہے. کس حال میں جائیں گے یہ مسئلہ ہے کہ زندگی اچھی گزارتے ہوئے اللہ کی رضا کی کہے رضا والے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے یا اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. مسئلہ یہ جانا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے. جانا تو بولو جانا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے میرے دوست بزرگوں لیکن کس حال میں جائیں گے یہ مسئلہ ہے. اب موت کس حال میں آ جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. موت کس حال میں آ جائے. ایک آدمی گناہگار تھا فاجر تھا زانی تھا. لوگ اس سے اتنا تنگ آ گئے تھے. وہ ایک مرتبہ کسی کا مکان کو پینٹنگ کر رہا تھا. اچانک اس کی سیڑھی سے پیر پھسلا زمین پر گرا. کیا جب اس کا انتقال ہو گیا لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر کے قبرستان میں جب دفنا دیا تو کسی اللہ والے نے خواب میں اس کو دیکھا. اس سے پوچھا کہ تیرا آخرت میں کیا مسئلہ حل ہوا کیا بنی. اس نے کہا کہ جیسے سیڑھی سے زمین پر گرا سیدھے جہنم میں گرا. سیدھے کام گرا. ایسی اگر زندگی ہوگی میرے دوستوں تو پھر تو کیا رہا. ایک آدمی کو 100 سال کی زندگی اگر اللہ پاک دے دے لیکن 100 سال کی زندگی جی کر موت اگر اس کی کفر پر آ گئی تو پورا مسئلہ بگڑا. پورا مسئلہ بگڑ گیا اس کا. مسئلہ میرے دوستوں بس اتنا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. کس کو ہو جائے بولو میرے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آج ریلیز ہوئے گانا سن لے تمہارا کسی تو تمنا ہے کیا. ایک نئی اسٹوری سن لے کو دنیا سے جانا کسی کی تمنا نہیں ہے. ایک شرابی سے شرابی آدمی نشے میں چور چور ہو گیا ہے. آپ اسے ہلا کر بولو کہ موت کیسی مرنا چاہتا ہے. جیسے گلی کے کتے مرتے ہیں تو ایسا مرنا چاہتا ہے. نشے کی حالت میں آپ کا گریبان پکڑے گا کہے گا نہیں ایمان پر مرنا چاہتا ہوں. کس پر مرنا چاہتا ہوں. وہ چاہتا ہی ہے کہ میری موت ایمان پر آ جائے. سب کی یہی تمنا ہے کہ موت اس کی ایمان پر ہو. اللہ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری حالت میں مسلمان بن کر آئے ایمان والا بن کر آئے. اور اس کے لیے اگر اس حالت کی وہ کہے اس سطح کی موت ہونا ہے اس سطح کی محنت بھی تو ضروری ہے. گیہوں پھینک کر چنے کی امید نہیں کیے جا سکتے. اور چنے پھینک کر بادام کی کوئی امید لگا کر بیٹھا ہے تو وہ پاگل ہے. چنے پھینک رہا تو کوئی آدمی یوں کہے کہ دیکھو 6 مہینے کے اندر کیسے بادام میں ہوگا تو اس سے لوگ ڈھال دیکھنے والا کہے گا تو بالکل پاگل ہے. جو ڈالے وہ بھی گیا تیری امید بھی بیکار ہو گئی. کیوں اصل تیرے پاس کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ تو نے سارا کا سارا بھنڈار اس پر لگایا جس پر کسی کی امید بھی نہیں کہ یہ پیروں تو فلاں چیز اٹھ جائے. نہیں ایسے ہمارا حال ہے. کیا کام ہمارے بگڑے ہوئے ہیں عمل ہمارے بگڑے ہوئے ہیں. ہماری زندگی حق راستے سے ہٹی ہوئی ہے لیکن امید لگائے بیٹھے کہ بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ غفور الرحیم ہے. بے شک میرے دوستو ضرور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تو بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں یوں آیا ایک آدمی کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار نکلا اور بازار میں جا کر جاتے وقت جیب میں پیسے رکھ کر گیا اور بازار میں جا کر جو ہے کسی چیز کا مطالعہ کیا کہ بھی فلاں چیز دو. اب اس کی قیمت کیا. دکاندار نے کہا اتنی اس کی قیمت ہے. بولے چلو ڈالو پیک کرو کور میں ڈالو. اب بھول کر اس نے اس جیب میں ہاتھ ڈال دیا. کبھی پتہ نہیں ایسا یہ جب ڈال دو کبھی کبھار ادھر تلاش کر. اب نہیں یہاں ادھر میں بھی میرے پاس ادھر ادھر کو ادھر تلاش کرو. یہ جو تھوڑی دیر کا جو شاپ کو آگے ہونا صدمہ علماء فرماتے ہیں اس کی تھوڑی دیر کے صدمے پر اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اس سے زیادہ محبت کرنے والا
जो बाप से नहीं बल्कि माँ से तजबीह देकर कह रहा है कि मैं तुम्हारी माओ से 70 माओ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं। कौन कह रहा है भाई? अल्लाह। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस अल्लाह ने ईमान की हालत में मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है, मैं और आप उससे उस पर मेहनत करके कैसे हम भी दुनिया से ईमान के साथ दुनिया से जाए, ये मसला है। बाकी कुछ नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारे मकानात जमीन के ऊपर रह जाएंगे। सारे मकानात कहाँ रह जाएंगे? जमीन के ऊपर। सारे बिजनेस जमीन के ऊपर, सारे कारोबार जमीन के ऊपर, सारे मामला तो मेरे दोस्तों वो जमीन के ऊपर रहेंगे। हमारे साथ जो आने वाले हैं वो हमारे नेक अमल हैं। कौन से अमल हैं वो? नेक अमल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर फरमाई, एक आदमी के 3 दोस्त थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी के 3 दोस्त थे। वो आदमी एक मरतबा इतना बीमार हो गया कि अपने तीनों दोस्तों को बुलाकर ये कहने लगा, ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ रहा है, मैं बहुत बीमार हो गया। तुम मेरे साथ, एक दोस्त से उसने कहा कि तुम कहे 3 भाई थे। अब बड़े भाई से उसने पूछा कि भाई तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, मेरे साथ कितना अच्छा सलूक कर सकते हो, क्या मामला कर सकते हो मेरी इस हालत को देखकर। उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ, जब तुम बीमार हो तो तुम्हारी क्या है, बीमार कुर्सी कराऊंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम्हारी पूरी देखभाली कराऊंगा, तुम्हारी पूरी देखभाली कराऊंगा। सारी चीजें जो कुछ तुम्हें जरूरत की कहे वो सारी चीजें तुम्हारे कहें, तुम्हारी कहे उस हाजतों को मैं पूरा करूंगा। बस इतना तो मैं कर सकता हूं। और जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो कहे तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हें नहला धुला कर कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान ले जाकर तुम्हें दफन करके आओ। और दूसरे भाई से उसने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा कि मैं इतना कर सकता हूं, जब तेरा इंतकाल हो जाए तो मैं तुझे छोड़कर दूसरे के पास चला जाऊं, मेरा काम तो बस इतना है। उसने तीसरे से पूछा कि तू क्या कर सकता है? उसने कहा जब तेरा इंतकाल हो जाए मैं तेरे साथ चलूंगा, लोग मुझे जब दफनाएंगे तो मैं तेरे साथ दफन हो जाऊंगा, तेरे साथ में रहूंगा, और कब्र में तेरे साथ रहूंगा, हशर में तेरे साथ रहूंगा, मैदान हशर में तेरे साथ रहूंगा, पुरसिरात के रास्ते पर मैं तेरे साथ रहूंगा, मीजान के तराजू में तेरे नाम अमल जब तोले जाएंगे तो नेकियों के पलड़े में बैठकर मैं उसे वजनदार बनाऊंगा। और सहाबा से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब तुम बताओ कि इन तीनों में से कौन सा भाई बेहतर है? कौन सा भाई? पहले वाला नहीं। और बोलो हाथ भी बोल रहे, क्या बयान नहीं, मेरा मुज़ाकिरा बयाना तौर में काम करते थे कि माशाल्लाह आप लोग ये सब बोलने वाला मजमा बैठे सो, हमें सब बैठे तो बैठे बैठे बोल रहे थे माशाल्लाह, सब बोलने वाले चीज हो। बस आपस में एक मुज़ाकिरे के लिए ईमान ताज़ा होते रहे, बस इसके लिए मुज़ाकिरा है। ये हमारे पूरे हफ्तेवारी के मसीदा फिक्र का जोड़ होता है। हमारी पूरी मसीदा फिक्र का जोड़ हफ्ते में मरतबा मरकज में कि पूरी मसीदा फिक्र आए, फिक्र लेकर फिर हम काम करने वाले बने, इसके लिए जोड़ा जाता है। बाकी कुछ बयानात नहीं, एक मुज़ाकिरा है आपस में। तो पहले वाला भाई ना बेहतर है या दूसरे वाला, लास्ट वाला? माशाअल्लाह सबकी कोशिश ये है फिक्र की भी वो आखिर वाला क्यों फरमाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पहले वाला भाई वो तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, तुम्हारे खानदान वाले कि तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हें नहलाएंगे, जब तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाओ तो नहलाएंगे, कफन पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हें कंधों पर ले जाकर दफन करके वापस चले आएंगे। और दूसरा भाई जिसने कहा कि तो जैसे तुम्हारा इंतकाल हो जाए मैं दूसरों के हवाले हो जाऊंगा, वो तुम्हारा माल है। माल क्या है बोलो? इस माल के लिए धक्के खानी नहीं हमें, सुबह शाम भूखे प्यासे रहकर जिसको जमा कर दी, जिसको गिन गिन कर रख दी, हमेशा जाकर टीम को तो पहले देख ली क्या तो पड़ेगी होगी। इसलिए पूरी क्या है कोशिशों के साथ जिसे हम जमा कर रहे हैं, पूरी जान तो मेहनतें करके जो जमा कर रहे हैं, वो माल जिसे सजा सजा कर दूसरों के हवाले देकर अमानतदारी के साथ दूसरों को गवाह बनाकर घर में पूरा रहा तो परेशानी दूसरों के हाथ में देकर जो करते थे वो गया, वो क्या हो गया? और तीसरा वो जो हमारे जिंदगी में साथ, मरने के बाद कब्र में साथ, मैदान हशर में साथ पुरसिरात में हमारे साथ, मीजान के तराजू में तोला जाएगा तो कहे नेकियों के पलड़े में बैठकर उसे वजन करने के लिए वहां बैठेगा, वो साथ देगा, वो हमारे नेक अमाल है, वो हमारे क्या है बोलो? इसलिए किसी कहने वाले ने कहा तकलीफ समझकर नेकी ना छोड़,
तकलीफ समझकर, नेकी ना छोड़, तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। और मजा समझ के, लज्जत समझकर गुनाह न कर, ये गुण कहे मजा खत्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? थोड़ी देर की मजा, लम्हों ने की कहे खता, सदियों ने पाई सजा है। लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। रत्ती थोड़ी देर की खता हुई सो बरसों तक उसका भुगतना पड़ता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम में से हर एक को कहा जाए कि वो नेक अमाल बनाने की जगह ये दुनिया है। नेक अमाल बनाने की जगह मैं ये पढ़ लेता ना नमाज तुम्हें देख रही क्या 5 टाइम माशाल्लाह सफ़े अव्वल पर खड़े हो, लेकिन किस हाल में पढ़ रहे हो मैं और आप सब जानते हैं। हमारी नमाजों का क्या हाल है हम सब जानते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह नमाज में खड़े हुए हैं तो इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से कि इमाम राजी से कहने लगे, इमाम राजी ये मेरे बंदे नमाज में भी आकर मेरे से ख्याल हटा लेते हैं, जरा इनसे पूछ कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई और है क्या? कौन पूछने से? अब हमारी नमाजों का क्या हाल है मैं और आप खुद जानते हैं। हमारी नमाजें कितनी जानदार है हम में से हर एक जानता है। हमारी घरवाली की नमाज कितनी जानदार है वो हम सब जानते हैं। हमारे बच्चों की नमाजें कितनी जानदार है वो हम में से हर एक जानता है। नमाज पूरा दिन नहीं है, नमाज दिन का एक हिस्सा है। नमाज बोलो, पूरा दिन नहीं है, नमाज क्या है? दीन का एक हिस्सा है। रोजा पूरा दिन नहीं है, रोजा दीन का एक हिस्सा है। मेरे दोस्तों, असल हमारे अमल कैसे बन जाए, हमारी जिंदगी में मुसद्दिक अलीम कैसे आ जाए, इसके लिए हमें से हर एक को कहा जा रहा है कि दुनिया में रहते हम आखिरत की तैयारी करें। अब सबकी ये कोशिश है, जैसे शुरू में बोले सबकी कोशिश है कि खातिमा ईमान पर हो जाए। जिंदगी जैसे गुजरे हजरत, मसला वो नहीं हजरत, मसला खाली मौत का कि मौत ईमान पर आ जाए। सबकी कोशिश है, यही तो फिक्र हमारी है कि मौत हमारे ईमान पर आ जाए। लेकिन मेरे दोस्तों ये बोलने करने से नहीं, इसके ऊपर मेहनत करने से खातिमा ईमान पर होता है। अल्लाह की रज़ामंदी से खातिमा हमारा ईमान पर होता है। पहले हम वो काम तो करें जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह के नबी खुश हो जाए, अल्लाह खुश होकर हमें अपना महबूब बंदा बनाकर दुनिया से रुखसत करे। उसके लिए तो दुनिया में भेजा गया कि अपनी आखिरत की तैयारी करो। तभी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? आखिरत की खेती। अब जितना बोना है, जितना कुछ भी खेत को हरा भरा करना है वो हमारे जिम्मे है। या कुछ भी नहीं, इसे चटेल मैदान लेकर जाना है वो हमारे जिम्मे है। अल्लाह पाक ने हमें इख्तियार दे दिया है कि करो, इख्तियार है तुम्हें दुनिया में करो, या तुम्हारे इख्तियार में है। तुम इससे चाहे तो अच्छी चीजों को देखो जिससे मैं और मेरे नबी खुश हो सके, इससे चाहे तो तुम गुनाहों की चीजों को देखो जिससे तुम्हारा ईमान कमजोर हो सके। यह हमारे इख्तियार में, अल्लाह पाक ने इख्तियार दे दिया, करो। इससे चाहे तो कहे गुनाहों की चीजों को पकड़ो, गुनाहों की चीजों में कहे इसे इस्तेमाल करो, या चाहे तो इन हाथ से कहे आप कहे मेरे वो काम करो जिससे मैं और मेरे नबी खुश हो सके। ज़बान हमारे इख्तियार में है, ये कान हमारे इख्तियार में है, इस्तेमाल करो, जहां चाहे इस्तेमाल करो। जो सुनना है वो सुनो, जो नहीं सुनना है वो भी सुनो, तुम्हारे इख्तियार में है। अल्लाह पाक ने इख्तियार दे दिया, सब कुछ अल्लाह पाक ने हमारे इख्तियार में दे दिया है। जो सुनना है वो भी सुनो, जो नहीं सुनना है वो भी सुनो, जो बोलना है वो भी बोलो, और जो नहीं बोलना है वो भी बोलो। तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन सब लिखा जा रहा है। सब क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है। आज हमारा मुफ्ती साहब महाना मुशर्रफ बोले बल्कि डाउनलोड हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है किया जा रहा है सब वहां आखिरत में डाउनलोड हो रहा है। बल्कि जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे फला हुक्म काम किया था, जब वो इनकार करेगा तो फिर प्ले कर वो अल्लाह पर दिखा देख फला टप्पा कराया था नहीं। सारी चीजें लिखी जा रही है, सारी चीजें लिखी जा रही है। इंसान जब किसी जगह पर खड़े होकर गुनाह करता है तो कई चीजें उसकी गवाह बन जाती है। सबसे पहले वो जमीन गवाह बन जाती है जहां पर वो खड़े होकर गुनाह करता है। हमें बोले तो कौन भी नहीं देख देना हुआ, अम्मा कौन भी नहीं देखे मुझे, ना मेरे साथ वाला था, ना कोई घर वाला, कोई नहीं थे, मैं अकेला था, मेरे से गुनाह हुआ, छोड़ो भाई क्या मसला। लेकिन गवाह हो गए, वो जमीन हमारी गवाह बन गई हमारे गुनाह की। वो फरिश्ते जिन्होंने हमें गुनाह करते हुए देखा है वो फरिश्ते गवाह बन गए। और तीसरा
وہ آزا جن آزا سے ہم نے گناہ کیے ہیں وہ آزا گواہ بنے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے توبہ تو سچی کر لیتے لیکن اظہار دوسروں کے سامنے کر رہتے ہیں، پھر بھی گواہ بنا رہے ہیں. کبھی ہوتا نہیں تو جو معلوم نہیں ہوئی میری زندگی ایسا گزری، میں توبہ ایسا ایسا ہوا ایسا ایسا ہوا. اب جب اللہ کے بندے کے معاملے درمیان میں یہ صلح ہو گیا تھا، اللہ قبول کر لیے تھے اسے توبہ، اسے سچی پکی توبہ دی، توفیق ہو گئی تھی، اس نے توبہ کر لیا، اللہ نے مسئلہ ختم کر دیا. لیکن پھر اپنے دوستوں کے سامنے کبھی محبت میں زیادہ جوش میں کو گناہ ظاہر کرتا، پھر وہ بھی گواہ ہو گئے. اب اس سے تو نمٹنا بڑا مشکل ہے. کہیں گے قیامت میں اللہ پاک کہ بھی تو نے صلح کر لی تھی، میں نے معاف کر دیا تھا، لیکن تو نے کسی اور کو گواہ بنا دیا. پتہ نہیں کبھی کبھار زیادہ گہری دوستی ہوگی تو پورا راستہ ہوگا تو جواب نہیں کیسا ہوا میرے ساتھ، میں کیا کرتا پوری اسٹوری شروع. اب دوسروں کو پھر چاہتے کو گواہ بنا. میرے دوستوں یہ دنیا صرف اعمال کی جگہ ہے، سزا و جزا اللہ پاک نے آخرت میں رکھی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ نماز پڑھتے فوراً پیچھے پھرے تو آپ کو وہ نماز کا امانت مل جاتا. بولو کوئی بے نمازی نظر آتا ہم میں سے؟ یہ جو بازار میں لوگ گھوم رہے ہیں، سڑکوں پر لوگ گھوم رہے ہیں، لوگ نظر آتے؟ بلکہ سب مسجدیں یہ کہاں یہ مسجدیں ہوتی، بلکہ اس سے بڑی بڑی مسجدیں بننا پڑتا. لیکن اللہ پاک نے ساری چیزوں پر پردہ رکھا ہے، ساری چیزوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. ظاہر نہیں کرے، سب چیزوں پر اللہ پاک پردہ ڈال رکھا ہے. اس لیے کہ تاکہ میرے بندے شوق سے کریں، آخرت کی کہیں، آخرت کے شوق میں، مجھ سے ملاقات کے شوق میں. یہی تو میں نے کہا کہ بھی جب آدمی نیک اعمال کرنا شروع کرتا ہے، آخرت کی کہیں تیاری کرنا شروع کرتا ہے، جب اس کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، اس سے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اس سے موت سے محبت ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی ملاقات کے شوق، اللہ سے ملاقات کرنے کا اس کے اندر شوق بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی آخرت بن رہی ہے. اسی اللہ والوں سے ایک کسی آدمی نے یوں کہا، حضرت میرا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میرا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ مجھے دنیا میں رہ کر کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت دیکھو ہم میں سے ہر ایک جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے میرا مقام آخرت میں اللہ کے نزدیک کتنا ہے. یہ ہم میں سے ہر کوئی کہے بیٹھ کر آسانی سے سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ان اللہ والوں نے کہا تیرا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے تو یہ دنیا میں رہ کر آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ حضرت نے کہا تو اپنی زندگی میں یہ دیکھ کہ تو نے اللہ کے دین کو کیا مقام دے رکھا ہے. جو مقام تو دنیا میں اللہ کے دین کو دیا ہے وہی مقام تجھے آخرت میں ملے گا. وہی مقام بولو. اب میں اور آپ آسانی سے سوچ سکتے ہیں کیا ہم نے اللہ کے دین کو وہ مقام دے رکھا ہے جس مقام کا اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا؟ آج ہماری شادیوں کو دیکھو، وہ دین ہماری شادیوں میں کہاں نظر آ رہا ہے. ہمارے کاروبار میں دیکھو، وہ دین آج ہمارے کاروبار میں کہاں نظر آ رہا ہے. ہمارے معاملات میں دیکھو، وہ دین آج ہمارے معاملات میں کہاں نظر آ رہا ہے. ہمارے لین دین میں دیکھو کہ وہ دین آج ہمارے لین دین میں کہاں نظر آ رہا ہے. ہمارے گھروں میں دیکھو، وہ دین آج ہمارے گھروں میں کہاں نظر آ رہا ہے. ساس بہو میں محبتیں نہیں، دیورانی جٹھانی میں محبتیں نہیں، سسرے جوئی میں محبتیں نہیں، حتیٰ کہ ماں بیٹے میں محبتیں نہیں. سب کی زندگی سے دین نکلا ہوا ہے، لیکن یہ کوشش ہے کہ بھی میرا مقام کو اللہ کے نزدیک بڑا اونچا ہے. ایک مرتبہ مولانا محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ ایک اجتماع میں بیان کے بعد کہ جب بیان ختم ہوا تو بیٹھے ہوئے تھے، کھانے سے فارغ ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت اجتماع بیان کرے تو کہے ایک آدمی اس مسجد، اس علاقے کے مسجد میں پابندی سے نماز پڑھایا کرتا تھا، سب کچھ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت نے کہا کہ بھی ایک فلاں آدمی ہے، چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں، بیچارہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بہت دنوں سے نہیں آ رہا ہے. اب اس سے جب ملاقات کے لگے تو انہیں بولیا، جو ملاقات کے لگے بولے بھی ماشاءاللہ آپ تو پابندی سے مسجد پایا کرتے تھے، اب اچانک نہیں آ رہے نا، کیا وجہ، کیا ہوگا تم نا؟ انہیں بولا حضرت تم نہ معلوم نہیں، میرا اللہ کے نزدیک میرا ایک مقام ہے، میرا کام ہو، مسئلہ ختم ہوگا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، اس کے سے نہیں آ سکے. حضرت بولے وہ کیا کہ بول رہا ہوں، میں بھی اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہوں. انہیں بولا حضرت تم نہ معلوم کیا، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس پر جہنم بولو نا حرام ہو گئی. میں اللہ کے نبی کو خواب میں 3 مرتبہ دیکھا گیا.
अब मैं 3 मरतबा देखा, मेरा कुछ अल्लाह के नजदीक मकाम है, तभी तो 3 मरतबा ख्वाब में देखा। अब मैं नमाज़ें पढ़को, ये सारे काम करको, मैं क्या करूं? बस मुझे होता से हजरत बोले वाह तो ख्वाब में देखा, अबू जहल तो जिंदे पर देखा, अबू लहब तो जिंदे पर देखा, और मैं बेटा जिंदे पर देखा कि जहन्नम माफ हो गई, अल्लाह की सजा से बच गया। अल्लाह, धोखा लग गया, दीन का भी धोखा लग गया था। इसका धोखा लग गया था, हाँ, सिर्फ माल का धोखा, शोहरत का धोखा, हाँ, दूसरी चीजों का धोखा नहीं, दीन का भी, दीनदारों को दीन से भी धोखा हो जाता है। ऐसा मेरा मसला खत्म हल होगा, मेरा क्या मसला नहीं, अब मेरा मकाम अल्लाह के नजदीक एक बड़ा ऊंचा है, देख गया इन काम से। अरे सहाबा तो वो थे जिनका मकाम बना हुआ था, लेकिन जिंदगी ऐसी थी कि क्या ऐसी थी जैसे तड़पते थे कि जैसे कि कोई सांप का डसा हुआ तड़पता, ऐसे गिड़गिड़ाते थे। अभी मकाम तो बना हुआ था ना, मसला तो हल हो गया था ना। अल्लाह के नबी हाथ पकड़ करके, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, 2 हाथ पकड़ कर अल्लाह के नबी ने पूरे मजमे के सामने कहा, या अबू बकर उमर जन्नत के बड़े लोगों के सरदार। मसला हल हो गया। इतना रोने की फिर क्या जरूरत थी? एक बाग के अंदर गए, एक जानवर को दरख्त के नीचे बैठा हुआ देख कर कहने लगे, वो जानवर तो कितने मजे में रहता है, खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में रहता है, मरकर कल क़यामत में तेरा कोई हिसाब नहीं तो मिट्टी हो जाएगा, काश क्या अबू बकर भी तुझे सा। मसला हल होगा था ना भाई? हाँ भाई, बशारत मिल चुकी थी ना, इसके बावजूद इतनी फिक्र। मुझे मालूम था जब तक कि मेरा खातिमा ईमान पर ना हो जाए मुझे इत्मीनान नहीं होगा। कौन कह रहे हैं? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला, अल्लाह के नबी फरमा रहे कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इतने गुस्से में होंगे कि अल्लाह के गुस्से को देखकर हर नबी कांप रहे होंगे। उस वक्त अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए सिद्दीक़ अकबर का ईमान दिखाया जाए। वो साहबी का जब ये हाल है तो मेरा वास्ता हो, अल्लाह पाक एक मरतबा जिब्रील से कहा, जिब्रील अमीन से, जिब्रील जाओ जरा जन्नत में घूम कर आओ। उलमा फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन के 600 पर नहीं, कितने पर है? कितने पर है? 600 पर। अगर उनमें से वो 2 परों को खोल दे तो पूरी दुनिया चंडूल जैसे कौन के बगल में आ जाती है। इतने बड़े फरिश्ते, उलमा ने फरमाया कि अपने पूरे 600 परों के साथ जन्नत में उड़ने लगे। ऐसे उड़े, ऐसे उड़े 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 उड़े, उड़ते उड़ते थक कर जमीन पर बैठे, और फिर दोबारा उड़े, उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, जन्नत में उड़ते गए, फिर थक कर जमीन पर बैठे, और फिर तीसरी मरतबा उन्होंने छलांग के उड़ान लगाई, ऐसे उड़ते रहे जन्नत में, कि उड़ते उड़ते कहे जब थक कर जमीन पर बैठे कहा, या अल्लाह मैंने जन्नत को बहुत देख लिया। अल्लाह पाक ने कहा कि जिब्रील तूने तो अभी तो अबू बकर के जन्नत का आंगन भी नहीं देखा। उनका ये हाल है, वो ऐसे तड़प रहे, वो ऐसे बिलबिला रहे, लेकिन हमें बोल रहे हमारा कुछ मकाम है अल्लाह के नजदीक, मेरा कुछ मसला हल हो गया, हजरत में टेंशन जो न हो, कोई हज का तो मुतमईन हो गया, मैं हाजिर होगा, मेरा मसला खत्म, उसके पूरे गुनाह माफ। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं? चेहरे से दाढ़ियां निकाल रहे हैं, कारोबार में खियाना शुरू हो गई, डंडी मारना शुरू हो गई, आपस में एक दूसरे में धोखा देना शुरू हो गई, लेकिन क्या दिल को तसल्ली क्या देगी? मसला खत्म हो गया। अल्लाह के नबी का वादा है, जाकर आए मसला पूरा खत्म, पूरे गुनाह माफ, वापस आएगा तो ऐसा आएगा जैसे माँ के पेट से दुनिया से आया हुआ। नहीं मेरे दोस्तों, ये दीन का धोखा भी हमें दूर करना है। अल्लाह ने हमें दुनिया में इसीलिए भेजा है कि हम दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कैसे करें। मरना तो हमें से, जैसे मैं बता रहा हूँ, मरना तो हमें से हर एक को है, मरना तो हमें से हर एक को मौत आएगी। 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जुमा के दिन एक बच्चे को वसूल किया, सुबह में पैदा हुआ, शाम को दुनिया से चला गया। सुबह में पैदा हुआ, सो अजान दिलाता है, फिर फोन करे, मैं बोला क्या भी फोन करी, आओ हजरत, बोले क्या हिस्सा? सुबह बच्चे का अजान देना, उसका इंतखाब हो। 9 माह जिस माँ ने अपने बच्चे को पेट में रखा हो, उसके दर्द को बर्दाश्त किया हो, उसकी तकलीफों को बर्दाश्त किया हो, और जमीन पर कभी ठोकर लगने की वजह से जमीन पर गिरने का मौका आया, तो और जब वो गिरने का मोमेंट था, उस वक्त पहलू बदल कर आपने कहे बाजुओं को जमीन पर रख दिए ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, अपना सर जमीन पर रख दिए कि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। इतनी तकलीफों के बाद जो बच्चा दुनिया में आया, लेकिन कहाँ गया? फिर दोस्तों बुजुर्गों,
हाँ, हम में से हर एक को जाना है, आज नहीं कल नहीं परसों, आए दिन दुनिया से जनाजे उठ रहे, हम में से हर एक देख रहा है, हम में से हर एक देख रहा है। हंसते खेलते घर उजड़ जाए, हंसते खेलते भाई को ले लिया तो दफन कर को वापस है, घर के अंदर बैठे बीवी से पानी मांग रहे हैं, एक गिलास, कब्रिस्तान बहुत दूर था। हमारे गुजरात के इलाके का मणिपुर का वाक़या सुना, छोटे भाई को ले गए, दफना को आए, बीवी से कहे गिलास पानी मांग रही, अंदर जाकर पानी लेकर आए, उन्होंने पानी पी को बैठे हुए थे, बीवी अंदर से पानी लेकर आकर पानी दे रही, जो पानी पी लिया, हाथ फुका रहे, हाला कर देखे इंतकाल, छोटे भाई को दफन कर करे, बड़े भाई का इंतकाल। अभी समझ में आना रहे कि मेरे दोस्तों हमारी जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है, उम्मीदें हमारी बहुत लंबी बना चुकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को एक नक्शा बनाकर दिखा, फज़ल अमाल में हज़रत शेख ने उस नक्शे को खींचा, एक 4 डब्बे बनाए, मुरब्बा बनाया, 4 लकीर डब्बे की जैसी शक्ल बनाई और चारों तरफ जो है छोटी छोटी लकीरें खींच डाली और कहे एक लकीर डब्बे से निकलकर डब्बे के पूरे बाहर चलेगी। साहबा से अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर बता रहे, देखो ये चारों तरफ से जो लकीर डब्बे की शक्ल में है, ये इनकी जिंदगी है, ये इनकी जिंदगी है। और ये एक जो लकीर जो है, जो डब्बे के दरमियान से निकलकर डब्बे से आगे निकल रही है, बहुत दूर चली गई है, ये इसकी उम्मीदें हैं। ये इसकी क्या है? जिंदगी से आगे की सोच रही सो, हमें यहाँ की सोच रही सो, आगे की सोच रही सो। और आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो छोटी छोटी लकीरें इसकी बाजू है, ये इसके ऊपर आने वाले हादिसा तो मुसीबतें हैं, एक से बचेगा तो दूसरी आ पड़ेगी, दूसरी से बचेगा तीसरी आकर पड़ेगी। एक मरतबा सहाबा की मजलिस में बैठकर अल्लाह के नबी ने ऐसा इशारा किया, सहाबा समझ नहीं सकी क्या बात, ऐसा इशारा करे अल्लाह के नबी, सहाबा हमारे जैसे नहीं थे, क्या की करे छोड़ दो, क्या होगा की गलत। सहाबा हर बात की अल्लाह के नबी कोई हरकत करते, कुछ बात करते, अल्लाह के नबी कोई अमल करके दिखाते, सहाबा फौरन पूछते थे, रसूलुल्लाह इसका क्या मतलब है? ऐसा भी नहीं कहा या रसूलुल्लाह आपने मजलिस में कैसे साहब हमारे सामने इस तरह का इशारा किया, ये क्या चीज है? एक मैयत को दफन करके गालिब बना रहे थे, तो गालिबन ये अल्लाह के वसल्लम ये अमल करके दिखा, तो किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह इसका क्या मतलब है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान की मौत यहाँ खड़ी है, ये सोचता इतना लंबा है। कहाँ खड़ी है? बस समझ में, इंसान की मौत कहाँ खड़ी है? इससे सर के पीछे खड़ी हुई है, और ये सोचता इतना लंबा है। मेरे दोस्तों बहुत मुख्तसर जिंदगी हम लेकर दुनिया में आए, बड़ी बड़ी कौमों की तरह नहीं आए। मुझे उलमा बैठे ऐसी ऐसी भी कौमें दुनिया से गुजरी हैं जिनकी कौमों में 300 साल में बच्चा बालिग होता था, हमारे तो 300 साल में 3-4 पीढ़ियां पाक हो गई होती। उनके दादा उनके काम भी तो 4वीं पीढ़ी के मालूम तुमना नाम ही मालूम नहीं हो, ज्यादा दो पीढ़ी के हमारा दादा उनके दादा नाम मुश्किल से मालूम होता, इसके बाद के हमने नहीं मालूम हो रहा। 300 साल में बच्चा जब बालिग हो रहा हो तो उनकी उम्र कितनी होगी जरा सोचो। उसकी एक बच्चे का इंतकाल हुआ, बूढ़ी अम्मा बैठ कर आंसू बहा रही, रो रही। उस सब के नबी वहां से जब गुजरे तो पूछा, मैं क्या हुआ, क्यों रो रही है? मैंने कहा मेरा बच्चा अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखा, लेकिन अभी दुनिया से हो जाए। उस नबी ने कहा, अम्मा आखिरी जमाने में एक उम्मत आएगी, वो ऐसी होगी, उनकी उम्र 60 या 70 साल की होगी। वो चौंक कर पूछी, 60 या 70 साल? हाँ 60 या 70 साल। उन्होंने कहा उनकी शादियां भी होगी, वो और ताजुब की शादियां भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे, उनके मकानात होंगे। बल्कि उस नबी ने फरमाया उनके मकानात ऐसे होंगे कि आसमानों को छूते हुए नजर आएंगे। उलमा ने फरमाया कि वो बुढ़िया कहने लगी, अगर नबी मुझे वो जमाना मिल जाए तो एक सजदे में जिंदगी गुजार दो। अब ऐसी उम्र तो अल्लाह को हमें नहीं दिया, 60 या 70 साल। कभी पेपर पढ़ते पढ़ते एक उनके दोस्त बैठ के बात वाला बोला, हम तस्कीर हो गए तो उन्होंने बोले, अभी हमारे बाबा हमारे दादा ही भी, हमारे नाना ही 115 साल। परसों एक हफ्ते पहले हमें चाय पी लोग बैठे होटल में, एक साथ तस्करा करे, कहा जा कर बेटूर को जाकर पूरी तुम्हारा नाना बैठे क्या ये उम्र में बुला लग गए थे। उन्हें बोले तुम हमारा नाना की उम्र 115 साल तो अभी है क्या? ज्यादा उम्र होगी तो लोग ताज्जुब करती, अभी है क्या? अखबार में पढ़े होगा किसी की ज्यादा समझे तो ताज्जुब करते, अभी है क्या ये लोग? अब जिनका बच्चा 300 साल में बालिग होता तो सोचो कैसी कौमें दुनिया से गुजरी होगी। जरा अल्लाह ने उतनी उम्र हमें अल्लाह ने नहीं दी है।
لیکن ان کی عبادتوں سے بڑھ کر اللہ نے اجر ہمیں دیا. ان کی عبادتوں سے بڑھ کر بولا اللہ نے اجر ہماری عبادتوں پر اللہ نے دیا. عمر چھوٹی ہے لیکن عمل کا اجر اللہ کو ہم نے بڑھا دیا. عمل کا اجر کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. ایک سے ڈبل، ڈبل سے ٹربل، پتہ نہیں کتنا اللہ پاک دیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کتنا اللہ پاک دیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ تو ایک محبت کے لیے بندے کے اندر شوق بڑھ جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، اس لیے یہ سنایا گیا ہے کہ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا. لیکن حقیقت میں جو اللہ دینے والے ہیں اگر وہ ظاہر کر دے تو خوشی سے کلیجے پھٹ جائے. خوشی سے کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری تسلی کے لیے بچے کو بہلانے کے سے ماں باپ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں دلا تو آپ سے دے رہا تو پریشانی کا مصیبت مول لینا نا، یہ دے وہ جو اس کا دل بہلا دیں، اس لیے کہ بعد میں کیا ہے اسے وہ بڑی بڑی چیزیں سے دیں گے انشاءاللہ. باپ بڑھتے بڑھتے زیادہ تر کا چلے گا بچے کے نام پکڑتا رہے، اتنی بڑی رکھے اب وہ بچے کو زیادہ تو گیا انہیں، اس لیے اسے دل بہلا دیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر کے تیرے نام پر فلاں چیزیں ہیں، تجھے وہ بڑا ہو جائے گا، عقل شعور ہوگا، عقل سلیم تیرے اندر آ گئی، تجھے بڑا ہو، یہ ساری چیزیں تجھے ملنے والی ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھائی جائے. تو جتنے وعدے اللہ پاک کے ہیں اسے گھر کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک ایمان والے کے لیے. کیوں؟ وہ اس کے لیے جو دنیا میں رہ کر اچھے عمل کر کے آخرت میں جائے. اب اچھے عمل ہیں نہیں ہیں اس میں بتانا کہ ہم نے دین کو کیا مقام دے رکھا ہے، وہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں اپنی تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے اللہ کے دین کو کیا مقام دے رکھا ہے. پوچھا نا وہ نوجوان پوچھا کہ حضرت اللہ کے میرا مقام کتنا اونچا ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ تو یہ دیکھ اپنی زندگی میں کہ تو نے اللہ کے دین کو تیری زندگی میں کیا مقام دے رکھا ہے. جو مقام ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو دے رکھا ہے وہی مقام ہمیں آخرت میں ملے. آج نہیں ہماری کیا وہ دن ہماری شادیوں میں نہیں ہے، وہ دن ہمارے رسم و رواج میں نہیں ہے، وہ دن ہمارے گھروں میں نہیں ہے. خرافات آ گئے، سارے خرافات. ایک جگہ ولیمے کو جانا ہو، ولیمہ نکاح کو جانا ہوا، جا کر بیٹھے تو شادی میں جیسے گئے تو سب کہیں اوپر دیکھ رہے، کمرے میں دیکھ لے، بیٹھے کیا بھی ہاں کیمرہ بھی نہیں ہے، پورے اوپر دیکھ لے کہ یہ کیا مصیبت ہے. سب نوجوان بچیاں تک بیٹھ کر اوپر کمرے کو دیکھ رہے، کیا کہ رہنگا بہال کون کی غیر رہنگا بہال. بہت دیر ہو گئی، انتظار کرے، نہ کھانے کو بلا رہی نہ جاؤ کو بول رہی. اب ایک صاحب بیٹھے تو پوچھے کیا بھی اتنا دیر ہو گیا، کیوں بیٹھ لگی؟ بولے دلہا دلہن کمرے میں اندر جا وہیں نکاح اب بھی چھوڑا سو، باہر ہے تو دعوت شروع ہو گئی. نوز باللہ کہاں سے لے کر آئے لوگ یہ رسم و رواج؟ بولو ذرا. دل نہیں مانے، ہمارے ساتھی بھی ساتھ میں ہم دونوں اٹھ کر واپس آ گئے، نہیں چلو مناسب نہیں. کہاں سے لے کر آئے لوگ یہ؟ اب وہ نوجوان بچیاں جو شادی میں بیٹھی ہوئے اس کمرے کو دیکھ رہے تو کیا کیا ان کے اندر خیالات گزر رہے ہیں ذرا سوچو. وہ جوان بچے بیٹھ کر نکاح میں اس کمرے کو گھوڑ رہے ہیں تو کیا کیا خیالات ان کے ذہنوں میں گونج رہے ہوں گے ذرا سوچو. ایسے گندے خرافات آج ہماری شادیوں میں آتے، شادیوں میں گندے خرافات آتے. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو کیا مقام دے رکھا ہے. کیا وہ دین ہماری شادیوں میں ہے تو کتنا دن باقی ہے، کتنا دن ہم نے وہ شادیوں میں رکھا ہوا ہے. لڑکی والے نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، تو مجبوراً کرنا پڑتا نا. حضرت صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ نے اپنی شادی کو کتنی سادگی کے ساتھ بنا رکھا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نکاح، ایک حضرت ابو دردہ رضی اللہ، یہ غالباً ایک صحابی دوسرے صحابی کو لے کر گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی کو ساتھ لے کر گئے. حضرت سلمان فارسی باہر کھڑے ہو کر ان کو بھیجے، ذرا اندر جاؤ، جا کر جو ان سے کہو کہ کہے سلمان فارسی آپ کی بیٹی کا کہے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہاتھ مانگ رہے، رشتہ مانگ رہے، آپ ذرا میرے بارے میں ذرا بات کرتا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں، یہ اندر گئے. آپ کہے لڑکی کے باپ سے بات ہو رہی ہے. اب جب پوری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی تو کون کیسے صحابی ہے، ساری دنیا تو تمنا ہے کہ سب جنت میں جائیں، جنت کی یہ تمنا ہے کہ سلمان فارسی میرے اندر آئے. ایسے مقدس صحابی، ایسے مقدس صحابی. انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی تو ماشاءاللہ بڑے اچھے صحابی ہیں، بہت اچھے صفات ہیں ان کے، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا بولتے ہیں؟ انہوں سب جگہ بولے میری بھی کبھی نہیں، تمنا تو ہے میری بھی. ہو گیا مسئلہ ختم، بولے ہو گیا، کیا نکاح ہو گیا. حضرت سلمان فارسی انتظار میں ہیں تو آئے تو سیدھے آ کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے.
تو سامنے پوچھا کیا ہوا؟ شرم کے مارے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ آپ کا لے کر گیا تھا، تقاضا آپ کا لے کر گیا تھا، مسئلہ میرا حل ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے پیغام آپ کا لے کر گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا، اس لیے میں شرمندہ ہوں. تو انہوں نے کہا فوراً ہاتھ پکڑ دیتے ہیں، ارے شرمندہ تمہیں نہیں، شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے کہ جہاں تیرا حق تھا میں وہاں ہاتھ مار رہا تھا. یہ تھی صحابہ کی صفات. اتنی سادی زندگیاں ان کی. ذرا سوچو، ایمانداری سے بتاؤ ہمارا کوئی ایک نکاح اتنا سادہ دکھا دو. کسی کی شادی میں جا کر کھانا کھا لے تو باہر بھی انٹر نہیں ہوتے، وہاں سے خوشبو ہو کے لیتے برابر بنا کے دربار ہو جائے. کوئی ایک چیز ردا لحظت بہت بھاری پڑ جاتا، وہ ذرا چیز کیا ہے ایکسٹرا کردہ لحظت لاجواب. کسی کہنے ایک بچی کا شعر ہے، اپنے باپ کے ٹکڑے کو چند جملوں میں جو بیان کر رہی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کسی کی شادی کے کھانے کو عیب نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ. اس ایک وقت کے کھانے کے لیے باپ کی پوری زندگی لگ جاتی ہے. اس ایک وقت کے کھانے کے لیے باپ کی پوری زندگی لگ جاتی ہے. کسی کے شادی میں رہ کر کھانے کو عیب نہ لگاؤ. تو اس بچی نے کہا کہ لوگ کہ میرے بابا کی ترقی کو دیکھ کر جل رہے ہیں. لوگ جو ہے میرے بابا کی ترقی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، کسی نے میرے بابا کے پیروں کے چھالے نہیں دیکھے. اللہ اکبر. ساتھ ہی لوگ ہماری زندگی میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے کاروبار میں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا بستی میں خامد سالی آ گئی ہمیں وہ چیز جو بستی میں سخت ضرورت ہے لوگوں کے لیے، ہم نے اس چیز کو جمع کر کے رکھ دیا اس کے لیے کہ جب مارکیٹ ہیوی ہوگا تو بیچیں. کچھ علماء بیٹھے ہیں کیا وہی دیں اس کے اوپر. بلکہ حدیث پاک میں آیا اللہ پاک اسے کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے. کس کی بیماری میں؟ کوڑ کی بیماری میں. یہ اس انتظار میں ہے کہ زیادہ نفع ملے گا تو چھوڑ دوں. حالانکہ اس وقت اس بستی کے اندر اس چیز کی سخت ضرورت ہے لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے، لیکن یہ اپنے گوڈن کے اندر، اپنے دکان کے اندر اس چیز کو اس لیے جمع کر رکھا ہے کہ جب ہیوی اس کا مارکیٹ اور ہیوی ہوگا تو میں پھر مال سیل کروں گا، اس کے لیے رکھا ہے. تو علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا اللہ پاک اسے کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دے. صاحب کی زندگی کو دیکھو، گئے چین میں کیا ہوا، کیا کرے بھائی؟ اپنی آمد دکھے صاحب کے، اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے دکھے، سب سے کم منافع میں بیچنا شروع کر دیا. لیکن ہوا کیا؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے. یہ تھی صفات، یہ ہے اعمال کو دنیا میں رہ کر آخرت میں بنانا ہے. یہاں بولیں گے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. کہاں بولیں گے؟ یہاں دنیا میں کرے تو یہ دنیا دین ڈالنے کی جگہ ہے. پھل جو ہے آخرت میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ وہ پھل آخرت میں ملے گا. ہم کر کے جائیں گے، ہماری اولادوں کو اللہ دین کے راستے پر، صحیح راستے پر چلائے، ہماری نسلوں کو اللہ دین پر چلائے. ہمیں قدم اٹھانا سو، ہماری اولادیں لوٹتی رہے گی. آخرت میں جا کر ہمیں مزے ہی مزے کرنا. ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ کبھی جب بھی راستے سے جاتا تو اپنے خزانچی کو ساتھ میں لے لیتا. اور ایک مرتبہ خزانچی کو ساتھ میں رکھو، بولیا دیکھ میں راستے سے جاتے رہوں، اگر کہیں کوئی چیز مجھے اچھی لگی، کسی آدمی کا کوئی عمل مجھے اچھا لگا، میں اگر اس کی تعریف کریا، سبحان اللہ بولیا یا کچھ بھی اس کی تعریف کریا، تو بلا جھجک 2000 روپے اٹھا کر اسے انعام دے دو. خزانچی بولیا میرا کیا جانا، دل میں بول جائے میرا کیا جانا، تمہارا میں دے دو تم لوگوں. اب بادشاہ اپنے خزانچی کو ساتھ لے کر جا رہا تھا تو ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، زمین کھود کو جو ہے بین ڈال رہا ہے، پودا پھیر رہا، چھوٹا سا درخت پھیر رہا. اب بادشاہ سوچا یہ عمر ہو گئی ہے، ہاتھ پیر کپ کپ آ رہی، دیکھو کیا امید سے پھیر رہا ہے کہ بڑا ہوا تو پھل کھانے کی امید نہیں کر رہا، چلو جا پوچھیں گے. اب جا کر سامنے کھڑا ہو کر بولا کیا بوڑھے میاں اب بھی لمبی زندگی جینے کا ارادہ ہے کیا؟ بوڑھا میاں پلٹ کو بولے نہیں بادشاہ ایسی کچھ امید نہیں ہے. پھر جھاڑ کے تو پھر نہیں، یہ بڑا ہوا تو اس سے پھل ملے تو پھر پھل کھا کو مزے لینے کیا. تو بوڑھا بڑا ہوشیار تھا، انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے بیج تم ڈالو پھل تمہاری اولادیں کھائے گی. بادشاہ بولے واہ سبحان اللہ، خزانچی 2000 بوڑھا ہو جاتا ہے. بادشاہ بولے بوڑھا آدمی بولے بادشاہ لوگ کہے بیج ڈالنے کے بعد چند دنوں کے بعد 6 مہینے آپ سے 1 سال کے بعد کیا فصل لیتے، لیکن میں وہ خوش نصیب ہوں جو آپ پہ ابھی فصل مل گئی. کیا بادشاہ واہ سبحان اللہ کیا، پھر اٹھا کو خزانچی 2000 کو دیتا ہے.
अब उन्हें बोला बादशाह देखो लोग फसल डालने के बाद एक बार बीन डालने के बाद एक बार फसल लेते हैं, लेकिन मैं वो खुश नसीब हूँ जो बीन डाला तो 2 बार फसल मिल गई। बादशाह बोले वाह सुभान अल्लाह। दादा जी बोले बादशाह बेटा बड़ा होशियार पूरा हालत था, पहले ऐसे निकल गया 2000 बदले निकल। हमारा यहाँ दुनिया में सिर्फ दीन डालने का काम है, दीन पर कदम उठाने का काम है, सही रास्ते पर अपने आप को लगाने का काम है, फिर आखिर मेरे दोस्तों वो बनती जाएगी, हमें दुनिया से चले जाएंगे, हमारी नस्लों को अल्लाह दीन पर चलाए। हमारी नस्लों को बोलो कहाँ चलने देते ना, माँ बाप गंदा है। देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब कदम उठाए तो सबसे पहले मुखालिफ तो अपने थे। कौन थे बोलो? सबसे पहले मुखालिफ कौन थे भाई? अपने थे। लेकिन छोड़ डाले क्या? इस उम्मत को सजा कर चले, ताकि क़यामत आने वाली उम्मत को सबक देकर चले। घसीटने वाले मुखालिफ जो लोग मिलती थी उनकी रहबरी से आदमी से बनता सो, उन्होंने तो इन सीधा चलेगा तो बड़ी कामयाबी मिल जाओ, बहुत कुछ का खाले जैसा दिखता है। तो मारा कुछ रहना, कुछ लोग घसीटने वाले, कुछ लोग बोलने वाले, सबकी सुनना फिर भी चलना, सबकी सुनना फिर भी चलना, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ना, ये मसला है। किसी का क्या नहीं करना, हमारी जबान से, हमारे हाथ और अमल से, बल्कि हमारे उस्ताद का कौन है फरमाया कि अपने ख्यालात से भी किसी को तकलीफ ना दो। ऐसी हमारी पाकीज़ा जिंदगी रहती। लोग बहुत सारे रहती ऐसी ऐसी, उनके अंदर से आदत नहीं जाती। कुछ लोग आदत ही छते लोगों के टांग घसीटना, उनको बिठाना, जरा कोई कुर्बानी देकर आगे चला गया तो उसकी यह मुखालिफ करना, उसकी कुछ बोलना, यूनिवर्सिटी में करने वाले दूसरे नहीं किया, ऐसी बात लोग हती, लेकिन आदत नहीं जाती। उनकी आदत पर उनको छोड़ना, मुझे और आपको बस काम करना। क्या करना? हमारी जमात थी आज से कई साल पहले, मतलब शिवमोगा में एक मरतबा मस्जिद में सो रहे थे रात को, तो रात को गया इधर सब रखता तो सो लगे, तो सुबह को पूरे के बगैर इधर हो गए, परेशान हुई है। साथ साल सब बड़ा जिन है, बैगा इधर रखे तो पूरे इधर होगी, क्या की गड़बड़ है मसला देखो हम सब। बोले क्या भी नहीं सो जाओगे क्योंकि बेकार है, सब फजूल बात करो लो। अब दूसरे दिन बैगा इधर रखे तो इधर से सुबह इधर हो गए। फिर आप बोले अमीर साहब तुम्हें समझ रही नहीं है, पहले मस्जिद में चलो से चलेंगे, कितने दिन का? बोले 4 दिन का। नहीं होता हम ना रहने चलेंगे। नहीं भी क्या भी नहीं, टेंशन लेने जाओ सो जाओ। अब जब आपको तीसरे दिन सोए तो फिर बैगा इधर से उधर हो गए, मंजब लग गए थे। वो क्या कि है ऐसा चले, हमारे साकर में बोल रहे क्या कि वैसा दिख रहा तो आप क्या है कि देखेंगे वो चौथे दिन रहते हम लोग ऑन साथी उड़ गए, हाथ पकड़ने क्या रहा मुसीबत पूरे जुलाबन देता जाना रहे, क्या कर रहा तो आदमी साहब को मालूम है कि बेगूर में कटपैकेट करता था। सो आदत नहीं जाती, कम से कम चुराने की आदत मेरी आदत नहीं, कम से कम है कि चीज रख मारता तो क्या करता था, है कि चीज रख कम से कम मारता तो आदत नहीं जाती। मेरा आदत नहीं जाती, छोड़ दो उनके हाल को। उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो बस क्या है, उनके लिए हदिया दे सकते हैं, उनके सदका देकर उनकी पीठ पीछे दुआएं करते, बस इतना। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अच्छे अखलाक उनके सामने दिखाना। कैदी को लेकर सुतून पर बांध कर छोड़ दिए, साहब अपना अमल करते रहे, फिर उसका सुतून छोड़, उसकी रस्सी खोल डाले, ना वो जाने के लिए तैयार, कुछ बोलने के लिए। पूछा गया क्या हुआ? बस कलमा पढ़ो। उसके लिए ना कोई डांट हुई, ना कोई उस पर कोई जुर्माना, कुछ नहीं भी। क्या हुआ था? अमल साहबा को उसने अपनी आंखों से देखा, ये थे जिंदगी के अमल। आज हमारी जिंदगी में क्या बताऊं मेरे दोस्तों, हमारे इंटरनेट के जमाने में फॉलोअर्स तो हमारे 1 मिलियन चलेगी, लेकिन खुद की जिंदगी में सगे भाई से बातचीत नहीं। क्या होगा बोलो? इंटरनेट की दुनिया से हमें जरा देखे तो हमारे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में हजारों के मिलियंस फॉलोअर्स हमारे लोगों के, लेकिन हकीकत वाली जिंदगी में इधर तो सगे भाई से बातचीत नहीं, सगे बाप से बातचीत नहीं, सगी बहन से बातचीत नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम मुसलमान हैं, अपने आप के बड़े दावे नहीं मेरे दोस्तों। ये दीन के धोखे से बाहर आना, हमें अपने आप को देखना कि मेरी जिंदगी कहाँ लग रही। साहबा की जिंदगी को देखिए, साहबा ने कैसे अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां दी, कैसे साहबा के बच्चे अल्लाह के रास्ते में चले थे। एक नौजवान अल्लाह के रास्ते में गया, बात समझ में आई, वक्त लगा, 3 दिन वापस आया, अपनी अम्मी से बोल रहा अम्मी मैं अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ 4 महीने के लिए। माँ बोली तेरे अब्बा 4 महीने के तू जाकर क्या हुआ करता है? बोला नहीं मुझे जाना है। नहीं तू जाको क्या करते, 3 दिन तो जाके आना। उसने कहा कि बस वो जमात के अंदर चलने के बाद 6 नंबर सिखाते हैं, उसमें का पहला 1 नंबर सीख कर वापस आ जाओ तुम। अम्मा को क्या मालूम 6 नंबर में बोला, बोले ठीक है जाओ, 1 नंबर तो सीख लेगा। जवान साथी था, 25-30 साल का गालिबन, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में निकला, उसकी पैदल जमात बनी। मौलाना बता रहे थे कि उसकी जमात चली पैदल, काम करते 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 वो काबेतुल्लाह में पहुंचा। काबेतुल्लाह में वहां जोहर की नमाज में उसका इंतकाल हो गया।
कहने वालों ने कहा कि हमने देखा डॉक्टरों का, जब किसी डॉक्टर का इंतकाल होता है तो उसके डिपार्टमेंट के पूरे लोग जमा हो जाते हैं। क्या भैया पूरे गाँव के डॉक्टर हाँ छीना तो हमारा डिपार्टमेंट का चलेगा, सब होगा। कोई वकील मर जाए, लाहर मर जाए, कोई सियासतदान मर जाए, पूरे डिपार्टमेंट के उसके सारे लोग जमा हो जाए। क्या भाई पूरे यूनिवर्सिटी में भी आ जाए तो फिर उनके डिपार्टमेंट का आदमी चले गए। उन्होंने कहा कि हमने एक जनाजा ऐसा भी देखा जिस जनाजे में सारे के सारे एहराम बांध कर खड़े हुए थे। कितना मुबारक जनाजा होगा सदा से। अब नमाज जनाजा पर उसको ले जाकर दफन कर रहे थे तो वहां के गवर्नर आ गए, बोले रुको। बोले क्या हुआ? हमने सुना है कि ये नौजवान वो काम लेकर अपने घर से निकला था जिस काम को लेकर साहबा यहां से निकले थे, तो आप क्या करें, इसे आम कब्रिस्तान में, साहबा के कब्रिस्तान में दफन करो। कहां से निकला था, कहां जाकर दफन हो। हमसे भी कहा जाए कि हम भी थोड़ी कुर्बानी पर आए, हम भी देखें कि हमें अपने अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में क्या मकाम दे रखा हूं। मैं जितना यहां पर अल्लाह के दीन को मकाम दूंगा, मर्तबा दूंगा, वो मकाम और मर्तबा मुझे आखिरत में मिलेगा। इसके लिए मैं क्या करूं, थोड़ी देर बैठकर सोचना है। साल हो गया हमारा, 2 साल हो गए, अब तो साल का कम से कम चिल्ला दे तो शेरों दे रही हमें, क्या दे रही बस साहब कुछ तशकील करे क्या भी देखो जमात चले, जुम्मा से तैयार नहीं होता, रमजान आदम जो हो पहले अशरे में चले आते हैं। तो मैं याद नहीं है पहले अशरे में गया था, हाँ ले गए थे। अब पहला अशर आते हैं पहले निकल गए, चिल्ला मांगने से साल को अब तैयार क्या हो रहे सब। ये हमारी कमजोरी और गफलत, हमारी लापरवाही की लोग देख रहे हैं हमें भी क्या कर दी। ये आवाम भी देख रही है कि हम किस तरह की कुर्बानी दे रहे, तभी तो उनके अंदर इतनी काहिली सुस्ती आ गई। वरना मेरे दोस्तों हमारे शहर का जायजा सब जानते हैं कि एक मस्जिदें कितने कितने पुराने साथी हैं, लेकिन आज तो हमारे हफ्ते वाली जो इतवार के दिन जो जोड़ होता है वो सिर्फ अपनी मस्जिद और फिक्र के पुराने साथियों का जोड़ होता है। पूरे मस्जिद और फिक्र को लाने के लिए ये जोड़ होता है, लेकिन देखो हमारी मस्जिद के 1 2 3 साथी आते हैं। अब देख ले हमारी मेहनतों का नतीजा कितना है। इसके लिए भी एक मेहनत है, हमारे सामने एक मैदान है, हम क्या करें, मेहनत कैसे करें। साहबा की जिंदगी को देखें, साहबा ने कहे दिन को अपने सामने क्या मकाम दे रखा था, तभी तो अल्लाह ने आखिरत में वो मकाम दे रखा है, तभी तो अल्लाह ने उनकी तारीफ को क़यामत तक लोगों को सुना रहे कि साहबा ने सफ़े अव्वल पर अपने दीन को मकाम, अपने दीन को रखा था। लेकिन हमें अल्लाह माफ फरमाए, सफ़े पहले नंबर पर दुनिया है, दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह करीम ले लो, कोई करीम ले लो। बल्कि हमारे उस्ताद बता रहे थे शेख, अगर कोई आदमी बैठ तो बातचीत में बैठ को कोई मसला बात है सामने बोलते रहे, कौन तो उसमें ये गिना बोले भाई दरअसल को दीन और शरीयत को बाजू रखो, ये बोलो क्या करेंगे। फरमाया कि वो आदमी ईमान की कह कुफ्र पर मरने का अंदेशा है, उसने दीन को ही हटा दिया, उसने दीन को ही हटा दिया। होता आप लोगों ने सुने रहे ये दरअसल दीन शरीयत को बाजू रखो, ये बोलो इसका क्या करेंगे, कहते हैं सुने रहेगा बहुत सारे लोग। आप भी इंसाफा में बैठ को ये दीन ना होने का नतीजा है, उस मेहनत वासल उस मेहनत पर ना आने का नतीजा है कि ऐसे अल्फाज लोगों की जबानों से निकलते। इसीलिए मेरे भी अल्लाह पाक ने हमें चुना है इस मेहनत के लिए। अल्लाह पाक हमें चुनकर इस उम्मत में जो पैदा फरमाया है, ऐसे ही इस मेहनत में भी अल्लाह ने हमें चुना है। पूरी उम्मत को अल्लाह चुनकर मुंतखब करके चुनकर कुछ और से अल्लाह पाक ने इस उम्मत में डाला, पसंद कर करके इस उम्मत में अल्लाह ने डाला। और वैसे ही अल्लाह पाक ने हमें चुनकर फिर से अल्लाह पाक ने चुने हुए में से चुनकर फिर अल्लाह ने हमें काम में लगाया, ये अल्लाह का शुक्र है। वरना तो हमारा हाजी साहब का बड़ा एक जुमला है, हम सब तो बचना चाहते थे, अल्लाह ने हमें लगाया। क्या करना चाहते थे? बचना चाहते थे। कौन लगाया उसने? अल्लाह। लेकिन लगे हैं दोस्तों, दर्द अंदर से खत्म हो चुका है। औलादें बेदीनी हैं, घर वाले बेदीन हैं, खानदान बेदीनी की हालत में जिंदगी गुजारा, दर्द खत्म हो चुका है। 3 दिन पहले एक फलस्तीन का एक वीडियो आया, 5 साल का बच्चा एक मलबे पर एक दीवार पर खड़े होकर अपनी अम्मी की मैयत को तलाश कर रहा है और आसमान की तरफ चेहरा उठाकर बोला, या अल्लाह इस मलबे के नीचे, दीवार के नीचे मेरी अम्मी दफन है, मुझे मिल नहीं रही है। चीख मार मार कर वो मिट्टी को हटा रहे और खड़े होकर जो आसमान की तरफ चेहरा करके पूरी दुनिया आलम इस्लाम को एक जुमला बोले, आज मुझे और आपको उस जुमले पर डूब कर मरने की बात। शर्म से हमारे चेहरे झुक जाते हैं। उस 5 साल के बच्चे ने क्या बेहतरीन बात की, उसने कहा मेरी अम्मी ने मुझे यह हदीस सुनाई थी। वो बच्चा 5 साल का बच्चा सुना, मेरी अम्मी ने मुझे यह हदीस सुनाई थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह उम्मत एक जिस्म के मानिंद है, पैर में ठोकर लगे तो आंखों में आंसू आते हैं,
तुम बताओ मुसलमानों, हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम्हें दर्द हो रहा है कि नहीं, पूछ रहा है। अल्लाह अकबर। 5 साल का बच्चा इतना दौड़ा, इतने हालात उम्मत पर आने के बावजूद भी घूमने फिरने से हमने फुर्सत नहीं मिल रही। 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन लोग टूरा जाकर फिरने को आ रहे। ऐसे हालत में भी लोग टूरा फिरने चले गए। उम्मत इतनी मुसीबत में पड़ी है, लोग टूरा फिरने चले। और स्टेटस बता रहे हैं, अपने स्टेटस को दिखाएंगे, देखो कहाँ कहाँ घूम कर रहे हैं। ये तो उम्मत के लिए आजादी करने का वक्त था, रोने का वक्त था। एक नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना करता था। मर्द कहें वो ईमान वाला नहीं था, उसकी जिंदगी में अभी ईमान नहीं आया था, लेकिन अल्लाह के नबी की बात को सुना करता था। एक मर्तबा मजलिस में नजर नहीं आया तो अल्लाह के नबी उसकी आदत की लगे, पता चला कि बीमार है। उसके पास बैठा, उससे कह रहे हैं कि बेटा कलमा पढ़। वो अपने बाप, अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता, अपने बाप के चेहरे को देखता है। 1 से 2 मर्तबा ऐसा, फिर अल्लाह के नबी ने कहा बेटा कलमा पढ़। अब क्या है, उसने फिर अपने बाप के चेहरे को देखा, बाप ने कहा बेटा कलमा पढ़। अब जैसे उसकी जबान से कलमा निकला, उसकी रूह निकल गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए घर से बाहर निकले। साहबा पूछा, बशारत है या रसूल, ये तो ईमान पर मरा है, ईमान के साथ इसका दुनिया से रुखसत हुआ, आप आंसू क्यों बहा रहे? बोले अगर इस वक्त में इसके पास न जाता तो बजाय ईमान के कुफ्र पर मर गया। उम्मत परेशान हाल है, उम्मत मुसीबत के दहाने पर खड़ी हुई है, लेकिन मेरे दोस्तों आज हम अपने नफ्स के चौंचले पूरे करने में लगे हुए हैं। अब तो चाहिए कि हम रातों में उठकर, हमसे तो कहा जा रहा है कि हम काम करने वाले रातों में उठकर उम्मत के लिए आजादी करें, रोने वाले बने। फिर जाकर हमारे अंदर से वो कहे, वो सलाहियत वाले कहे लोग खड़े होंगे, हमारी नस्लों में वो सलाहियत आएगी, हमारे घर वालों में वो सलाहियत पैदा होगी, एक एक की जिंदगी में सत्य का दिन आएगा। आज हमें सोने वाले बन गए, रोना खत्म हो गया, सोने वाले बन गए, पूरी कहे पूरे का पूरा घराना, पूरी आवाम भी सोने वाले हो। देर तक जागना, देर तक सोना, यह हाल हमारा हो गया। देर तक जागना, देर तक सोना। तभी तो आज कमाने में कोई झिझक नहीं है। 1000 के बेमन धड़क माशाल्लाह कमा रहे। कमाई का दरिया ऐसा है कि बैठ कर खा सकते, इतनी कमाए फिर भी परेशानी जारी नहीं। क्यों? बरकतें अल्लाह पाक ने खत्म कर दी। जहां मेहनत हुई वहां बरकतें नजर आई, वहां नेक लोग पैदा हुए, नेक औलादें जिंदगी में आई। उनकी सलाहतें ऐसे रहेगी कि सारी दुनिया देखती रहेगी उनकी जिंदगी को, कैसी सलाहतें कहां थे, कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो अपनी खाला के यहाँ रहते थे, किसी कॉलेज में पढ़ते थे। अब क्या है, वो वहां पढ़ते थे, एक मरतबा उनका टेस्ट हुआ, बड़े माशाल्लाह अच्छे अक्ल, अल्लाह पाक ने अक्ल शऊर दिया था हजरत को, बड़ी अच्छी क्या है इल्म अल्लाह ने दी थी। पूरे क्या है उस कॉलेज के अंदर सबसे पहले नंबर पर हजरत आने वाले थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वहाँ के जो उस्ताद थे, वहाँ का हजरत की खाला को बोले, ये बच्चा इतना होशियार है, इसके अंदर अल्लाह ने इतना अक्ल शऊर दिया है, इस बच्चे को हमने ये पूरी क्या है टीम ने, कमेटी ने ये फैसला किया है, ये बच्चा आगे चलकर जितना पढ़ेगा हम इस बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे, ये जहां तक जाएगा हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो खाला खुश हुई, माशाल्लाह मेरी बहन के बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत है क्या, अब छुट्टियों में लेकर अम्मा के घर पर। जब याद रखो, दीन होगा तो दीन रहबरी करता है, दिन होगा तो दिन नहीं होगा, जहां मन चाहे वहां चले जाते हो। अब खाला आपको बहन को बोल रहे, बड़ी बहन को, बहन देखते हो माशाल्लाह तेरा बच्चा पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर इतना क्या पहले नंबर पर आने वाला बच्चा, वैसी कुर्बानी इसके अंदर ऐसा है, ऐसी अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है। और यहाँ तक कि उन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि ये तेरा बेटा उमर जितना आगे पढ़ेगा वो सब अपने पैसों से फ्री पढ़ाएंगे, जहां तक पढ़ना चाहता है। आज से उनकी औरत होती, ओ माशाल्लाह मेरा बच्चा नाम रोशन कर दा, मेरा झंडा चढ़ा दा, आप क्या टेंशन नहीं, मेरा सीना ठंडा होगा। ये छोटा सा आजकल मेहनत नहीं है तो ये छोटा सो 10 साल की बच्ची उलमा इकराम के सामने बैठकर कुरान उठा रही है, ये एहसास नहीं हो रहा है। 15 साल की बच्ची खड़े होकर स्टेज पर आती तो सीना चौड़ा हो जाता हमारा। तो माशाल्लाह देखिए मेरी बच्ची हजरत ने मेहनत नहीं हुई, दिन में तो ये नतीजा नजर आता है। एक 5-10 किलो ज्यादा वजन पहलवान उठा रहा है तो अखबार में आ जा रहा है, वो एक 6 साल का बच्चा कुरान पाक उठा रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं। ये तो हो रहा आज। अब माँ के अंदर, माँ भी दीनदार थी, माँ ने कहा अच्छा इतनी सलाहियत मेरे बच्चे के अंदर है, तो मैं ये नियत करती हूँ आज कि मैं अपनी इस बच्चे की सलाहियत को खत्म होने नहीं दूंगी। बोले करते क्या? बोले मैं इस बच्चे को मदरसे में दाखिला कराऊं। बहन सिर पकड़ ले, कहीं को तभी बुला ले, कोई की मुसीबत इसे, हाँ 5 बजे जाकर रखो, मैं क्या कि आगे बढ़े थे, बच्चा आगे चलो कहां से कहां पहुंच जाता।
अब इसे ले लगा सोने तो इन्हें लगा तो कहें मदरसे में दाखिला करा चुन करें ना, क्या मुसीबत दे लगी। उसने माँ ने कहा मेरे बच्चे के अंदर जब अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी है तो मैं इसकी सलाहियतों को ज़ाया होने नहीं दूंगी, इसकी सलाहियतों को अल्लाह के दीन पर लगाऊंगी। हजरत गए, माँ ले जाकर हजरत को मदरसे में दाखिला कराए। जब एक हफ्ता हुआ, जब हजरत वापस आए तो वो अम्मी के सामने बैठकर कहने लगे अम्मा आज हमारे मदरसे में अंजुमन था, जैसे जुमेरात के दिन एक अंजुमन होती मदारिस में, बच्चों को कॉम्पिटिशन करा कि नात पढ़ना, तकरीर देना, हम्द पढ़ना। लेकिन कहें जब वो माँ ने कहा अम्मा आज मैं भी बैठ कर कहें 2 मिनट की तकरीर किया, एक छोटा सा मजमा गिने चुने लोग बैठ कर कहें इस बात को मेरी 2 मिनट की तकरीर को सुने। जब माँ के सामने तकरीर पेश की तो माँ ने कहा बेटा आज तेरी 2 मिनट की तकरीर को ये 2-4 लोग बैठकर सुने हैं, एक वक्त आएगा तेरी इस तकरीर को लाखों के लोग सुने। नहीं देखा, देखने वालों ने अकाबिरों ने देखा होगा, लाखों के मजमे में हजरत ने बैठकर बयान किया। ये चीज सलाहियतें होने के बाद उम्मत में ऐसे अफराद निकलते हैं। अब हमसे भी कहा जाए कि हम भी थोड़ा कुर्बानी पर आए। हमारे सामने माशाल्लाह इज्तिमा है, हमारे पूरे 2 जिलों का अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा, बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। कोलार के अंदर फरवरी 7-8 को कहीं इज्तिमा हो रहा है। उसकी मेहनत करके लगे हैं 20 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट से जमातें निकल। कहा जा रहा है कि आवाज लगाई जा रही है कि तैयार हो जाओ, अपने काम दूर भी जाने का नहीं, वो ये ठंड में जाकर काम उसमें हमें लटक जाना नहीं, हजरत परेशान, लॉकडाउन भी नहीं, टेंशन की बात कोई भी नहीं, क्या लटकने का भी नहीं, कोई मसला भी नहीं, क्या ठंड है नहीं परेशानी, जा कौन अटक देंगे ये ठंड में आराम से, ऐसा कोई मसला नहीं। बहुत दूर भी जाना नहीं, करना हमारे ही इलाके में, करना हमारे ही अतराफ में है, बंजर बस्तियां हैं, वहां पर जाना है, मेहनत करके लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ लाना। इसके लिए हमारे पूरे जिले से आने वाली 20 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह जमातें बन रही। तो भाई जिन भाइयों का पहले भी इरादा हुआ है, जिन भाइयों का अब इरादा हुआ है, वो सब साथी जरा खड़े होकर नाम लेकर कि 20 तारीख से कौन कौन अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए तैयार है। बोलो नाम लिख लेने एक बार। सैयद असलम भाई, फिरोज भाई, अनीस भाई माशाल्लाह, नयाज भाई, हिदायतुल्लाह साहब माशाल्लाह, इस्माइल भाई, सईद प्यारेजान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो तकरीबुल में सुबह माशाल्लाह इरादे है अल्लाह कहीं साथ यार बताइए, गौनी से बताएं, गौनी से बताएं, बोलो साथी मोहम्मद साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो सर और बताए भी माशाल्लाह उस्मान गनी से भी भरपूर जमात है, उमर फारूक से भी है, मक्का से भी है, हैदर सदर से भी तश्कीला होकर रही है। बताए उमर फारूक क्या बोल रही, एक भी नहीं है आपको। अकरम पाशा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान। बोलो भी साथ 10 तारीख से भी जमात है उमर फारूक की। उमर फारूक की 10 तारीख से जमात भी चल रही, जल्दी तैयार हो तो उसमें भी लिया, नहीं तो कम से कम आखिरी दर्जा 20 तारीख से। 20 तारीख से वसीम क्या बोले, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान। महबूब क्या महबूब पे चलेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, महबूब भाई का मेरे माशाल्लाह मक्का से, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो अबू बकर वाले बोलो भाई, रहमतुल्लाह भी का दिखा नहीं इसमें नहीं। और शामिल से भी सत्य है ना, क्या आया और भी माशाल्लाह 10 तारीख को भी है, 20 तारीख की जमातें हैं, फातिहा भरपूर तश्कील भी करें, लेक चलने वाले भी तैयार हैं माशाल्लाह, जमातें भी निकल रही, अच्छा मौका है। शेरोदा बताए भाई कौन सी मस्जिद से है, बोलो किस तरह जमात कहाँ से? कदरीपुर से एक जमात है, कदरीपुर से एक जमात, अजीजिया से एक, मरकज से इंशाल्लाह एक जमात, मदीना मस्जिद से क्या समझे? और भी मक्का से भी, आदम से एक है, और कुरमल्ला से भी माशाल्लाह। मदीना होते का महाना जो होगा
अब मक्का हल्के का समा है भी, मक्का हल्के के सारे साथी फिक्र करें। लिखो लिखा लिया मस्जिद आदम में है सुबहाना जो मगरिब की नमाज मक्का हल्के के पूरे साथी समा इंशाल्लाह मस्जिद आदम में पढ़ने की फिक्र करें। ठीक है भी साथी, ये अज़ाइन में माशाल्लाह जमात में साथी तरह भरपूर अपनी मस्जिद में जो तश्कीली जमात बनी है 2-2 साथियों की तरफ भरपूर तश्कीलें करें, इंशाल्लाह एक बड़ी दोस्त इंशाल्लाह जमातें निकल जाए। ठीक है इंशाल्लाह। इसके साथ जो है हमारे मकामी काम है, क्या बोला तलबा हैं कि इस मसले में ज़रा बाहर चले दो हो जाना। ठीक, दुआ के बाद जो है तलबा जो आए ज़रा बाहर एक साइड हल्का बना लो। इसके साथ जो हमारे मकामी 5 काम है 12 माशाल्लाह तो समझाते हैं सब। में पहले भी शुरू में बताया बोलने वाला मजमा बैठा है, सबको मालूम है मकामी 5 काम के हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ फरमा। वो मकामी 5 काम हमारे ज़बान के बोल हैं लेकिन ज़िंदगी कामों नहीं। इसलिए रोज़ाना की क्या है 3 काम हैं, रोज़ाना 3 काम के अपनी मस्जिद की तालीम, घर की तालीम पाबंदी के साथ करें, मोहताज बनाकर बिठाएं, सलाम फिर कर चले आना नहीं घरों को। अल्लाह की नबी ने पनाह मांगी है उस इबादत से जिस इबादत के बाद दुआ न हो। हमें काम करने वाला सलाम फिर कोट को भर गया नहीं, बल्कि बैठे, उसके बाद तालीम होगी, तालीम में बैठे, फिर तालीम अपने घरों में करने की कोशिश करें। ठीक है इंशाअल्लाह। रोज़ाना फिक्र जिस मस्जिद में जिस वक्त में होते, फजर में, मगरिब में या इशा में, जिस मस्जिद में जिस वक्त होते अपनी मस्जिद और फिक्र के साथ बैठ कर थोड़ी देर फिक्र करना है। उन्हीं फिक्रों को ले जाकर रोज़ाना की मुलाकात में भाई जिसे जब वक्त मिलता है, सुबह में आपको वक्त मिलता है तो सुबह में मेहनत करो, शाम में आपको वक्त मिलता है तो शाम में मेहनत करो। ये काम हमें चलकर करना है, बुलाए तो करेंगे ऐसा नहीं है। बुलाए तो करने का क्या नहीं, उन्होंने बुलाए जा तो हो भेज नहीं, चलो मैं खुद चलूंगा, 2 साथी को साथ लेकर इंशाल्लाह मेहनत करो, ऐसा काम करेंगे नहीं इंशाल्लाह। रोज़ाना की फिक्र में बैठ कर रोज़ाना की मुलाकातों में जाना और अपने हफ्ते का एक काम किया अपनी मस्जिद का पाबंदी के साथ अल्लाह माफ़ फरमाए। अपने मोहल्ले के गश के दिन साथी आगे पीछे है। कभी कभार ऐसा होता है 4 अमल जो गश में होते वो 3 अमल हो जाते, कभी 2 अमल हुआ, कभी 4 अमल ऐसे हो तो कमजोर, एकदम कमजोर। ऐसा एक साथी इस्तकबाल में, एक साथी दुआ में, एक साथी बात में, एक साथी बैठे रहता है, एक साथी बात करते रहते, ये हालत है इसकी ऐसी नहीं। इसलिए क्या फिक्र करें कि अपने मस्जिद के मोहल्ले के गश के दिन पाबंदी से पहुंचे। आप साथी वक्त फारिग करके आए कि मुझे 2 नमाज़ों को मुझे गश को जाना है, अब ऐसे होते चौकन्ने बनकर कि भी मुझे काम करना है, सुस्त को पाना नहीं, क्या भी तैयार है मुझे इनको भेज दो, ऐसा नहीं आना, क्या भी तैयार नहीं, बराबर नहीं, ऐसी नहीं, बल्कि तैयार होकर आना है कि मुझे काम करना है। इसलिए आएंगे इंशाल्लाह 2-4 जमातें बनेंगी हमारे बड़े फरमाती, आपने हफ्ते में गश के दिन जो है 2-2-3-3 जमातें बनाओ। एक जमात तलबा पर मेहनत के लिए बनाओ, पुराने साथियों के लिए, घर की दुकान पूरी तरतीब होगी। जब बड़ा मजमा गश के दिन आए, आप 4-5 साथी, 5-6 साथी अगर गश में है तो क्या अमल होता जरा सोच को देखो। इसलिए सब साथी अपनी मस्जिद के गश के दिन पहुंचेंगे इंशाल्लाह, उसी गश को बाकी रखने दूसरा भी पाबंदी के साथ करना। और आखिर काम है कि पूरे 27 दिन खूब मेहनत करके या 3 दिन अपनी खुद की जमात बनकर अल्लाह के रास्ते में लेकर चले, ठीक नहीं इंशाल्लाह। और दूसरा हमारे मंगल के दिन यहाँ पर मुशर्रा होता है, साथ ही मगरिब की नमाज को पहुँचना इशा तक मुशर्रा होता है। बहुत सारे तकाज़े हमारे सामने आएंगे। फिर क्या हमारा इज्तिमा असर से इतवार के दिन शुरू होता है, असर से पहुँचने की कोशिश करें। असर से जिनकी बात होती है, लिखा है कभी कभार ऐसा होता है असर में जिनकी बात होती है उन्होंने आगे रहते हैं, आवाम मजमा नहीं रहता, 1-2 साथी बैठ रहते हैं, बेचारा वो अपनी जिम्मेदारी जो मशवरे से जेलते उसे पूरा कर दो। इसलिए असर से साथी पहुँचने की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बड़े शबगुजारी की इजाज़त दी दे तो ज़माना गुजरगा, लेकिन हमें अभी नियत कर लो कुछ करेंगे और मशवरे में सब बोल रही हमें करना सब बे शबगुजारी करना सब बे साथी तैयार हो, लेकिन हमारा छोड़ा। इसलिए सब साथी कोशिश करें इस तरह हमारा करीब है शबगुजारी का अमल होगा, रातों में रोना हो, ठीक है ना इंशाल्लाह। दुरुस्त اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا كنا من الظالمين. اے اللہ شب نگاہی سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جان کر جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جانے میں جو گناہ ہوئے ہیں، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے بڑی جرأت کے ساتھ ہم کرتے رہے کہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، پھر اللہ ہم سب کے گناہ
को माफ़ फरमा, ऐसे माफ़ फरमा कि जिस जगह पर खड़े होकर हमने गुनाह किया था या अल्लाह उस ज़मीन को भुला दे। या अल्लाह जिन फरिश्तों ने हमें गुनाह करते हुए देखा था या अल्लाह फरिश्तों को भी भुला दे। जिस ज़मीन पर खड़े होकर हमने गुनाह किया था वो ज़मीन को भुला दे। या अल्लाह जिस आमाल में या अल्लाह हमारे गुनाह लिखे गए हैं या अल्लाह उसे मिटा दे। या अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा और उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा और उम्मत मुस्लिमा के खताओं को दरगुदर फरमा। या अल्लाह ये उम्मत इतने बड़े हालात देख रही है फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं, फिर भी अल्लाह नफ्स के चौंचले पूरे करने में पड़े हुए हैं, अल्लाह फिर भी अय्याशी में पड़े हुए हैं। तेरा दीन हमारे आंखों के सामने से मिटता जा रहा है। देख रहे हैं या अल्लाह घरों से बच्चियों की ज़िंदगी से दीन निकला हुआ है, बच्चों की ज़िंदगी से दीन निकला हुआ है। लोग आंखों से देख रहे हैं कि मेरी औलाद दीनदार नहीं है, मैं दुनिया से चले जाऊंगा तो मुझ पर सूरह फातिहा पढ़ने की भी तौफीक नहीं होगी। ऐसे औलाद को हमने तैयार कर रखा है या अल्लाह फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। या अल्लाह हमें हमारी औलादों को, नस्लों को, खानदान वालों को सबको अल्लाह दीनदार बना, दीन पर साबित कदमी नसीब फरमा, मौत के आखिरी सांस तक बसीरत के साथ इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत या अल्लाह परेशान हाल है, अल्लाह जहाँ कहीं भी अल्लाह लोग परेशान हाल है या अल्लाह परेशानी को दूर फरमा, परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हम रात में जब सोते हैं तो ये सोच कर सोते हैं कि सुबह उठकर फलां कारोबार को जाना है, जॉब को जाना है, ड्यूटी को जाना है, पता नहीं क्या क्या सोच लेकर हम सोते हैं। और या अल्लाह फ़लस्तीन में ऐसे भी लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रात को सोते हैं तो ये सोच कर कि सुबह किसका जनाजा किसी कंधों पर उठाना है, कौन किसी कंधों पर जाने वाला है, मेरे घर के अंदर कोई मर्द नहीं है, अगर कोई इसका इंतकाल हो जाए तो कौन उठाएगा। ऐसे उनकी रात गुजर रही है। या अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह चाहत रसूल की मदद फरमा। या अल्लाह ये उम्मत बड़ी परेशान हाल है, परेशानी को दूर फरमा। मौला करीम हमारे ज़िले का इज्तिमा तय हुआ है, अल्लाह हमारे बड़ों ने हमसे बड़ी उम्मीद लगाई है, अल्लाह उनकी उम्मीद से ज़्यादा हमें काम करने की तौफीक अता फरमा। जिन भाइयों ने नाम लिखाया है या लिखाने से रुक गए हैं, चलने का इरादा है, सबको कबूल फरमा। आने वाले 10 तारीख और 20 तारीख से खूब मेहनत करके हमारे अल्लाह शहर से जमातें निकालने की तौफीक अता फरमा। मौत के आखिरी साल तक बसीरत के साथ हम सबको इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में जो गलती है अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमा। इस दुआ को मैं अपने करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के फेल में और उनके वसीले से दुआ को कबूल फरमा। जल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति मेरे आँखें तरसती हैं या रब।